Hello dear student, in this video we are going to watch the reduction of hematite ore which is carried out in the blast furnace. Okay, already we have seen the construction of that blast furnace. Blast furnace is a which type of furnace? It is a combustion type of furnace. Okay, so after watching this video you will be able to describe the reduction process of hematite ore with its chemical reaction, and that reduction it is carried out in blast furnace. Okay, so let us proceed further. What is that reduction? Okay, so reduction already I said to you during the steps involved in the metallurgy. Reduction it is carried out by the three ways. First is the smelting, okay, and another one it is the aluminothermic process. And third one is the electrolysis. But for the reduction of hematite ore, out of these three we are going to use that smelting. What is that smelting? Smelting it is nothing but the melting of ore. Okay, so what is smelting? Smelting it is nothing but the melting of ore. So let us proceed further. What is reduction? Reduction of hematite ore carried out by smelting method. Which method? Already I said to you it is carried out by the smelting method. Okay, and where that smelting is carried out? Smelting it is carried out in the blast furnace. Okay, so smelting it is the heating the charge. Smelting is the process of heating the charge. Now what is that charge? Charge it is nothing but the hematite ore, reducing agent plus flux. See here, when charge we have to heat it. Okay, where we are going to heat? We are going to heat it in the blast furnace at high temperature. Okay, so charge, what is charge? Charge it is nothing but the mixture of ore, coke and flux. Coke here it is used as a reducing agent. Ra means reducing agent. We are using this coke as a reducing agent in smelting. Okay, so charge in the ratio 8:4:1. You have to take in this ratio. Suppose if you are going to take the 80 kg of ore, that time you have to take the 40 kg of that coke and 10 kg of the flux. So you have to take in the ratio 8:4:1. Okay, so we will see what is the role of each of these. Ore, what is roasted ore or calcined ore? It is the source of iron. From that ore we are getting the iron. What is the role of coke? Coke is used as a fuel. It is having the dual function here. Okay, it is यहाँ पे कोक जो है ये फ्यूल करके भी हम यूज करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट करके भी यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द लाइमस्टोन. Limestone it acts as the flux. Limestone it acts as a flux. At high temperature this limestone decomposes to lime, and this lime it is acting as a flux. And you are knowing what is flux? Flux is the substance which is used to remove the gang. Okay, हम ये फ्लक्स क्यों यूज करते हैं? तो गैंग जो होता है ओर में, ओर के साथ जो भी गैंग होता है उसे रिमूव करने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं. तो ये फ्लक्स और गैंग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फ्यूजिबल मास फॉर्म होता है विच इज फ्लोटिंग ओवर द हर्द. हर्द के ऊपर जो फ्लोट होता है और मोल्टन मेटल नीचे होता है, जो फ्लोटिंग मास होता है. ओके, जो फ्यूजिबल मास फॉर्म होता है फ्लक्स और गैंग के कॉम्बिनेशन से उसे बोलते हैं स्लैग. ओके, सो एक्चुअल वर्किंग क्या होता है हम देखेंगे. यस, सी हियर, hot blast of air is introduced from the wires. Already I shown to you during the working. You can see here. This is the here above from the base 2.5 meter above. Okay, यहाँ base से हम 2.5 meter above जाएंगे तो यहाँ पे number of small pipelines होते हैं. उसे क्या बोलते हैं? It is called the wires. Okay, and through these wires hot blast of dry air. हॉट एयर इट इज टेकन इनसाइड. यहाँ से इस वायर में से हॉट एयर क्या की जाती है? अंदर ली जाती है. जैसे अभी मैंने आपको बोला जो चार्ज है यहाँ पे मिक्स किया जाता है. चार्ज का प्रोपोर्शन हम क्या लेने वाले हैं? 8:4:1. इट इज थरोली मिक्सड इनटू ईच अदर. और यहाँ पे आपको एक्सेलरेटर जैसा दिखाई देता है. यहाँ पे एक कैरिंग वैन है, इसमें क्या किया जाता है? ये पूरा चार्ज
उसमें फीड किया जाता है, यहाँ से ये ऊपर आता है, ऊपर से यहाँ पे आपको थ्रोट में डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट है, जो मैंने बोला था जो भी हॉट गैसेस है वो बाहर नहीं जाने चाहिए, इसलिए यहाँ पे डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट उसके थ्रोट में प्रोवाइड की है। ओके, सो डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट से हम क्या चार्ज अंदर फीड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मैंने अभी आपको क्या बोला, एक वायर में से हम क्या लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर थ्रू दिस वायर। वायर में से हम हॉट एयर अंदर लेने वाले हैं। ओके, हॉट एयर बोले तो क्या होता है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके चार्ज, इसमें क्या है, चार्ज में कोक है। कोक बोले तो कार्बन। कार्बन जब ये यहाँ से हॉट एयर आ जाएगी उसके साथ वो बर्न हो जाएगा, उसका ज्वलन हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म प्लस 97 किलो कैलोरी हीट इज जनरेटेड। ये जब इस यहाँ पे जब भी वो जो आपका कोक आता है ना, कोक बोले तो कोक क्या है, कार्बन सी, यहाँ से हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर, गर्म हवा अंदर ले रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन भी है, इसके साथ जब कार्बन मिल जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक कौन सी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स व्हाट, हीट इज इवॉल्व, हीट इज थ्रोन आउटसाइड, यहाँ पे हीट जो है बाहर फेंकी जाती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और कितनी हीट भेजती है, 97 किलो कैलोरी हीट निकलती है यहाँ से। तो फिर ये जो भी हॉट एयर ऐसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर से आपका चार्ज भी आ रहा है, फिर चार्ज में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, फिर से उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो CO2 फिर से वो कोक जो है, कोक बोले तो कार्बन, उसके साथ मिक्स होके क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, 2 CO इज फॉर्म। ओके, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2, सो रिएक्शन इज बैलेंस एंड दिस टाइम heat is taken inside. This reaction is endothermic. एंडोथर्मिक बोले तो अंदर ली जाती है, बाहर नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज गिवन आउट, बट हियर दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बोले तो हीट इज टेकन इनसाइड। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर, जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस का कैसा होता है, कम कम होता है, लेकिन जैसे आप नीचे आओगे ब्लास्ट फर्नेस को तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट टेम्प होता है। Okay, so because this reaction is endothermic and that carbon monoxide CO which is formed, that CO it is acting as a reducing agent. So हम यहाँ पे देखेंगे, अभी मैंने आपको बोला था hot blast of air introduced from the wires into the furnace. furnace में आ जाएगी जो hot air है वो, and charge fed through the cup and cone arrangement जो अभी मैंने आपको थ्रोट में दिखाई थी। ऊपर से हम क्या करने वाले, चार्ज फेड करने वाले ब्लास्ट फर्नेस में। नियर द वायर्स, वायर के बाजू में क्या होता है, एक कोक जो है बर्न इन द ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर। हॉट एयर के साथ जब ये कोक मिल जाता है तो क्या होता है, उसका कंबशन होता है, उसका ज्वलन होता है टू फॉर्म द CO2। यहाँ पे 2 जो है सबस्क्रिप्ट को लिखना है, विथ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाई है, C plus O2 gives CO2। एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर फेंकता है, और हीट क्या होती है, इतनी ज्यादा अमाउंट पे हीट जनरेट होती है, दैट इज 97 किलो कैलोरी हीट इज जनरेटेड। सो इसलिए इसका टेम्परेचर नियर दी वायर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे, थ्रोट की तरफ जाएंगे ब्लास्ट फर्नेस को, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों होता जाता है, जो जैसे अभी मैंने आपको बोला था, कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऊपर जाएगा ब्लास्ट फर्नेस के, वो किसके साथ मिल जाएगा, ऊपर से आने वाला कोक मीन्स फिर से कार्बन के साथ मिक्स हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और दैट वन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बोले तो हीट इज टेकन इनसाइड, बट यहाँ पे कैसे, हीट इज गिवन आउट, एक्सोथर्मिक। This reaction is exothermic. Remember in exam also, MCQ also it is asked, reaction is given to you and written, state this reaction is exothermic, true or false. You can say this is the true because this is exothermic. Endothermic बोले तो क्या, हीट अंदर ली जाती है। Okay, so next we are going to see, yes, when CO2 goes up, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऊपर जाता है, इट रिड्यूसेस टू, किसमें रिडक्शन होता है उसका, कार्बन मोनोऑक्साइड में, बाय द कोक। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। देखो जो वायर के बाजू में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था, वो कोक के साथ फिर से मिल जाता है, तो क्या फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म हो जाते हैं,
और -39 किलो कैलोरी। यहाँ पे माइनस साइन दिया है, बोले तो क्या है, हीट अंदर ली जाती है, बाहर नहीं फेंकी जाती। सो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कहां से, बॉटम को बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे ब्लास्ट फर्नेस के तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम कम होता है। दिस CO, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है, एक्चुअली इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस मोस्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड इनटू द आयरन मेटल। ओके, तो अभी हमने क्या लिया है, और कौन सा है हमारा, हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट। ओके, इट कंबाइंस विद दिस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आया आप बोलोगे तो यहाँ पे जो ऊपर फॉर्म हुआ है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ ये हेमेटाइट कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है, देखो कितने Fe के एटम है, 2 Fe फ्री करता है और ये ऑक्सीजन है जो इसके साथ मिल जाते हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड इट इज फॉर्म। ओके, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर फेंके जाते हैं और ये है जो द मोल्टन आयन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जो ऊपर होता है वो क्या होता है, नीचे कलेक्ट होता है। हर्द मैंने आपको दिखाया था, हर्द को भी 2 ओपनिंग होती है। हर्द यहाँ बॉटम में जो होता है ब्लास्ट फर्नेस के, उसको 2 ओपनिंग है। यहाँ पे जो है, यहाँ से हम मोल्टन मेटल निकालते हैं और ऊपर में जो होता है स्लैग। अभी हम स्लैग कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। और ये जो मोल्टन मेटल हमें यहाँ से ब्लास्ट फर्नेस में से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पिग आयन। रिमेंबर, द आयन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इट इज कॉल्ड द पिग आयन। ओके, नेक्स्ट लाइमस्टोन भी हमने यूज किया है। चार्ज में क्या क्या मिक्स किया था हमने, और कोक और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन डिकम्पोज होता है किसमें, लाइम में। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। ये डिकम्पोज होता है, जब आप हीट करोगे तो लाइम में डिकम्पोज होता है एंड दैट लाइम इट इज एक्टिंग एज अ फ्लक्स। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हियर गिवन आउट। दिस फ्लक्स कंबाइंस, फ्लक्स बोले तो ये लाइम कंबाइंस विद द गैंग। कौन सा गैंग है आपका, सिलिका की इम्प्यूरिटी है हेमेटाइट के साथ, एंड फॉर्म्स द स्लैग। ये फ्लक्स है हमारा यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है और ये गैंग है सिलिका, ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, ये स्लैग फॉर्म होता है। ओके, सो और ये जो गैसेस है वो भी बाहर निकलते हैं यहाँ से। जो है आपको, आपने देखा होगा यहाँ पे एक ऐसी ओपनिंग होती है, टॉप को है ना, यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस को टॉप को एक ओपनिंग होती है फॉर दी फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस आर थ्रोन आउट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस क्या क्या मिलता है हमें, कौन से प्रोडक्ट मिले हैं ब्लास्ट फर्नेस में से। पिग आयन जो लोअर वाली ओपनिंग से निकलते हैं, स्लैग टॉप ओपनिंग से हम निकालते हैं स्लैग, और फ्लू गैसेस बोले तो जो वेस्ट गैसेस है, ये 3 प्रोडक्ट्स हमें ब्लास्ट फर्नेस में से मिलते हैं रिडक्शन करने के बाद हेमेटाइट का। नाउ ये पिग आयन जो है हम यूज करते हैं टू मेक द रोट आयन, इसे बोलते हैं रोट आयन। ये पिग आयन इट इज नॉट द प्योर फॉर्म, सो प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योर 99.99% प्योर जब आयन होता है उसे बोलते हैं रोट आयन, प्योर फॉर्म ऑफ आयन। ओके, समझ में आया, प्योर फॉर्म ऑफ आयन को क्या बोलते हैं, रोट आयन। एंड इट इज ऑल्सो, ये पिग आयन हम क्या बनाते हैं, स्टील भी बना सकते हैं। स्टील क्या है, स्टील इट इज द अलॉय ऑफ आयन विथ कार्बन और वेरियस मेटल, अलग अलग मेटल भी हम इसमें ऐड करते हैं, जैसे क्रोमियम, निकेल, ओके, मैग्नीशियम, उससे क्या बनता है, स्टील बनता है। और ये जो स्लैग बना है इसमें, दैट इज CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, ये है हम रोड टू मेक द रोड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं। अदरवाइज दिस स्लैग इट इज डायरेक्टली यूज टू मेक द रोड, रोड बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। ओके, सो और एक पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ, इसके जो है 3 जोन्स होते हैं ब्लास्ट फर्नेस के। फर्स्ट इज द जोन ऑफ रिडक्शन, पहला वाला जो होता है उसे बोलते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। सेकेंड जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्ब होती है। और लास्ट वाला है दैट इज द जोन ऑफ फ्यूजन। रिमेंबर दीज आर द 3 जोन्स ऑफ द ब्लास्ट furnace. Okay, zone of reduction, zone of heat absorption and zone of fusion. The temperature for this it is the 300 to 800 degrees Celsius. For this it is 800 to 1200 degrees Celsius and last 1200 to 1500 degrees Celsius. Okay,
So we will stop here. Thank you.